Good afternoon, sir. Hello, Yes, sir. Yes, sir. now am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, okay, just I'm going to share my screen to all of you. Okay, Yes, sir. Yes. okay. चलो. Today's topic is same sequencing series. Sequencing series. Okay. We're studying geometric progression. No, geometric progression, in which we deal today properties of geometric progression. Okay, properties of geometric progression. Previous day we studied sum of n terms of geometric progression, sum of infinite number of terms in geometric progression, and some infinite series. Okay. Today we are going to discuss about properties of GP. Okay. GP is a series such that suppose first if G1, G2, G3 Gn are in GP, then A its square root, cube root, or nth root, or square power, cube power, fourth power are always in GP. Okay. If G1, G2, G3 Gn are in GP, then must be root under of G1, root under of G2, root under of G3 root under of Gn are in GP. Okay. Or you can say G1 square, G2 square,
G3 square Gn square are also in GP. Okay. Even its reciprocal 1 by G1, 1 by G2, 1 by G3 1 by Gn are also in GP. Okay. Second Yes. is, means square means what? You can take nth power also, or you can take nth root also. Nth root of G1 you can take. Nth root of G2, nth root of G3. N is inside the root. Okay. So all are in GP. So these are the points. Second is, but if you add or subtract anything, if you add or subtract anything, its GP series will not be there. But you multiply or divide by a constant term, its GP will be same. D. KG1, KG2, KG3, KGN are in GP. Okay, example you can take, means suppose 2, 4, 8, 16, 32 are in GP. Are in GP. Then you divide every term with 2 by 2 by 2 by 2 by 2 by 2. Means 1, 2, 4, 8, 16 are in GP. Okay. Was understood or not? Yes. Yes, sir. Okay. Means as we, so sorry, we should multiply by 2, but we have divided. Means same type is with division also. Means G1 by K, G2 by K, G3 by K, Gn by K are in GP. Okay. बच्चे आप लोग समझ गया? Yes. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पेज आए. Yes. नेक्स्ट सेकंड. सर मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो जीपी में नहीं होगा कौन ना? सा? अगर जैसे हमने डिवाइड करा है जीपी को डिवाइड बाय 2 तो वो मतलब जीपी में है. अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीपी में नहीं होगा. जीपी में जरूर होगा. जब डिवीजन में हो सकता है तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे नहीं होगा? देख लो एग्जांपल. सेकंड पेज में दिखाऊं? हेलो. यस सर. ऐसे मान लो. यस सर. ओके, जैसे आप लिए हो, सॉरी 2, 4, 6, 8, 16, 32 are in GP. Okay. Multiply every term by 8. Sorry, 4. 4 is greater by 3. 2 into 3, 4 into 3, 6 into 3, 8 into 3, 16 into 3, 32 into 3. What is its answer? 6, 12, 18. Sorry, 2, 4, 6, 8 not in GP. 2, 4, 8. Sorry. You should 2, 4, 6 is not there. 2, 4, 8, 16, 32 are in GP. So you cannot take it. Okay. यस आप सर. लोग गौर से देखा करो, मैं गलत भी बता देता हूँ तो आपको कोई चिंता नहीं होती है. 8 3 जा 24, 16 3 जा 48, 32 3 जा 96 आर इन जीपी. है कि नहीं?
मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने या स्क्वायर करने या स्क्वायर रूट करने से जीपी सीरीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या फिर रेसिप्रोकल लेते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब ऐड या सब्ट्रैक्ट कोई भी टर्म करेंगे, कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब उस स्थिति में वो जीपी में नहीं रह जाता है। ठीक है बच्चे? यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकेंड प्रॉपर्टी, कि मान लो जैसे आपने एपी में क्या देखा कि सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म, isn't it? Is always equal. Similarly in GP, product of first term and last term, okay? Product of first Yes, sir. term and last term means 1 into Gn, G1 into Gn equals to G2 into Gn minus 1 equals to G3 into Gn minus 2 equals to dot dot, ये सारे इक्वल हो जाएंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू a square r to the power n minus 1 because first term is a and nth term is ar to the power n minus 1, so its product will be a square r to the power n minus 1. Any doubt? No sir. Okay. Third one is if dot 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 gn are in GP, then log of G1, log of G2, log of G3, dot dot dot, log of Gn are also in GP. Okay. Sorry, or in AP. एक मिनट, सॉरी आज पता नहीं गलत क्यों हो रहा है मेरे से इतना जी। उस समय भी गलत हो गया, अभी भी गलत हो गया। आर इन AP and vice versa, okay. मीन्स अगर G1, G2, G3 डॉट 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 Gn आपका GP में है तो लॉग लगाने पर ये AP में आ गया, और ये अगर AP में होता तो लॉग लगाने के बाद ये किस में आ जाता? GP में आ जाता। Yes. ठीक है बच्चे, ये है Yes, रिलेशन sir. इनके बीच में। लॉग लगते ही ये GP से AP में या AP से GP में कन्वर्ट हो जाते हैं। जनरल टर्म जो है AP का, सॉरी GP का, जैसे आप देख रहे थे उसमें क्या बन रहा था, उसमें आपका बन रहा था AP के केस में आप देख रहे थे कि आइदर लीनियर इक्वेशन बन रहा था या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था या क्यूबिक इक्वेशन बन रहा था, हो रहा था कि नहीं? ठीक उसी तरह से इसमें जो है पावर के फॉर्म में ये आना शुरू हो जाता है। ठीक है, पावर के फॉर्म में आने का मतलब क्या है? ए आर टू द पावर n माइनस 1 प्लस बी एन प्लस सी, इस तरीके का केस आता है। ठीक है, अगर मान लो टर्म डिफरेंस अगर जीपी में है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 जो है, इस तरह से टर्म अगर जीपी में है उसका जो कॉमन रेशियो निकालेंगे, कॉमन रेशियो अगर आर है देन nth टर्म जो होगा वो हो जाएगा ए आर टू द पावर n माइनस 1 प्लस बी एन प्लस सी। बात नहीं समझे बच्चे? समझ में बात आई मेरी? सर bn प्लस सी क्या था? क्या सर bn प्लस सी क्या ऐड होगा? बता रहा हूँ मैं आपसे क्या बोला कि मान लो
ये G1 G2 G3 Gn जो है एक सीरीज दे दिया है, लेकिन ये अभी जीपी में नहीं है, ठीक है, ये अभी जीपी में नहीं है, बट G2 माइनस G1 G3 माइनस G2 G4 माइनस G3 मीन्स डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज इन जीपी। ओके सर। जैसे मैं बताया था ना कि लीनियर आ रहा है, क्योंकि आप जानते हो क्या कि L इक्वल टू होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बताओ ये आपका लीनियर है कि नहीं? A और D के टर्म में यस लीनियर ही है, लेकिन यस सर। यही चीज आ जाता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, कब? जब इन टर्म्स का डिफरेंस आपका एपी में होता था। डिफरेंस ऑफ दिस टर्म्स आर इन एपी, देन टी एन इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एन स्क्वायर सॉरी, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। ओके, सिमिलरली if T2 माइनस T1 कॉमा T3 माइनस T2, डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, T4 माइनस T3 डॉट 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 Tn माइनस Tn माइनस 1 आर इन जीपी, आर इन जीपी। ऐसे ये T1 T2 T3 T4 जो है जीपी में नहीं है, बट द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन जीपी, देन Tn equals to AR to the power n minus 1 plus Bn plus C। अब आप क्या करोगे, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उसके आधार पर A, B और C की वैल्यू पुट कर लोगे। अब देखो ये आपका समेशन ऑफ सीरीज के अंतर्गत ही पढ़ा जा रहा है। एक चीज बच्चे याद रखिएगा, ये जो सर। पढ़ा जा रहा है आपका समेशन ऑफ सीरीज के तहत ही पढ़ा जा रहा है, ठीक है बच्चे? ओके यस सर। सर। यस और इसमें जो है इसका रिलेशन बाइनोमियल थ्योरम के साथ बड़ा अच्छा है। बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हो आप? यस सर। बाइनोमियल थ्योरम में आप पढ़े होंगे, याद कीजिए। सर हमारे बैच में नहीं पढ़ेगी अभी बाइनोमियल थ्योरम। क्या यस सर, अभी हमारे बैच में नहीं पढ़ाया बाइनोमियल। आपका बैच अलग है, उनका बैच अलग है? इससे पहले यस अलग सर। था, अब मर्ज हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो तो मैं बात कर लूंगा सर से, तब मैं आपको बता दूंगा। तो मैं एक इन्फॉर्मेशन के तहत में बता रहा हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम में जो आप पढ़ते हो, मतलब उसमें फॉर एनी इंडेक्स जब लेते हैं, जैसे मान लो -1 -2 या -5/3, वो एक इनफाइनाइट सीरीज देता है कि नहीं? वो इनफाइनाइट सीरीज जो है वो वास्तव में एजीपी सीरीज ही होता है, वो वास्तव में एजीपी सीरीज ही होता है। अगर सारे बच्चे पढ़े होते तो मैं एक क्वेश्चन के तहत आपको बता देता कि बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू जो इनफाइनाइट सीरीज है और एजीपी सीरीज के थ्रू जो इनफाइनाइट सीरीज है दोनों सेम होता है, बल्कि बाइनोमियल से वो निकालना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है बच्चे? क्योंकि बाइनोमियल का तो सिंगल फॉर्मूला है, उसमें आप पुट करते चले जाओ चलते चले जाओ आपको डायरेक्ट मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको सम और डिफरेंस निकालना होता है, ठीक है बच्चे? तो इस कारण से आपको थोड़ा सा इसमें समय लग जाता है। लेकिन इनफाइनाइट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन है तो अगर मैं बाइनोमियल पढ़ाऊँ तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप हमेशा उसको बाइनोमियल से ही सॉल्व करना, ठीक है बच्चे? बाइनोमियल में जो प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट लिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके तहत बहुत सारे सीरीज तो ऐसे ही निकल जाते हैं। यस विदाउट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप कर सकते हो किसी भी सीरीज का, इनफाइनाइट सीरीज का सम, ठीक है बच्चे? अब जैसे क्या है, इस पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन करो तो मजा है कि नहीं? सर हाँ बोलिए। सर लॉग वाले का एक एग्जांपल दे दो। लॉग वाले का? अच्छा चलो ठीक। यस। लॉग वाला इसी में था, हाँ। लॉग लॉग के बारे में तो जानकारी होगी, है कि नहीं? log 2 log सॉरी आज गलत पता नहीं क्यों हो रहा है इतना मेरे से।
मैं ये बोल रहा हूँ कि 2, 4, 8 आर इन जीपी, है कि नहीं? अब अगर आप लॉग लगा देते हो तो ये क्या हो जाएगा? log 2, log 4, log 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर, log 8 इसको क्या लिख सकते हो? 2 2 क्यूब क्यूब। लिख सकते हैं कि नहीं? आर इन डैश अभी पता नहीं है, ये क्या हो गया? log 2, 2 log 2, 3 log 2। अब बताओ ये log 2, log 2, 2 log 2, 3 log 2 जो होगा वो किस में आ जाएगा? ईपी। एपी में आया कि नहीं? आर इन एपी, है कि नहीं? क्योंकि इसका डिफरेंस देखो log 2 ही है, 2 log 2 माइनस log 2 करोगे तो क्या आएगा? log 2 आएगा। 3 log 2 माइनस 2 log 2 करोगे तो क्या आएगा? log 2 आएगा। इसका मतलब है ये किस में आ गया? एपी में आ गया। क्लियर? यस सर। हेलो। ओके, चलिए तो अगला जो है इस पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपका फोर्थ प्रॉपर्टी बताया हूँ, ठीक है? कैसे हम लोग निकालेंगे ये देखते हैं। पता तो है नहीं, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं निकालने का। इसी तरह से डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लिया जाए, जैसे दो टर्म का डिफरेंस आपने लिया तो वो डिफरेंस अगर जीपी में था तो टी एन इक्वल टू ये आ गया। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे T1 T2 T3 दिया चल देता हुआ चला जाएगा, तो पहला टर्म जो होगा आपका जो होगा फर्स्ट टर्म जो होगा वो T1 होगा, होगा कि नहीं? आप क्या करोगे इस पूरे सीरीज में n के जगह पर 1 पुट कर दोगे, ठीक है? तो कुछ ना कुछ ए बी और सी में एक रिलेशन आ जाएगा आपके पास, समझ गया? फिर क्या है, n के जगह पर आप 2 पुट करोगे, एक और ए बी और सी के बीच रिलेशन आ जाएगा, ठीक है? और फिर n के जगह पर जब 3 पुट करोगे, 1 जैसे पुट करते हो तो देखो क्या हो जाएगा, ये r गायब हो जाएगा। 1 जब पुट करोगे a r टू द पावर 0 हो जाएगा, गायब हो गया। a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू, फर्स्ट टर्म कुछ ना कुछ तो दिया होगा, उसकी वैल्यू तो दी गई होगी, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। तो यही है कि फर्स्ट टर्म जो दिया है वो किसके बराबर हो गया? a प्लस बी प्लस सी के बराबर हो गया। क्लियर? फिर आप T2 निकालते हो, T2 का मतलब क्या हो गया? ए आर प्लस 2b प्लस सी। अब इसकी भी वैल्यू आपको दी गई है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों को माइनस कर लो तो देखो सी अपने आप कैंसिल हो जाता है, तो ए और बी में एक रिलेशन आ गया। फिर आप 3 पुट करोगे, ए आर स्क्वायर प्लस बी, है कि नहीं? अब जब देख रहे हो कि T2 माइनस T1 जो है वो किस में आ रहा है? जीपी में आ रहा है, तो ऐसे भी आर की वैल्यू आपको पता चल जाती है। पता चल रही है कि नहीं? जब ये आपका जीपी में है उससे आर की वैल्यू पता चल गई, वो आर की वैल्यू आप फट पुट कर दोगे तो ए बी और सी में 3 इक्वेशन निकाल लो, तीनों को सॉल्व करके ए बी और सी की वैल्यू मिल जाती है और फिर टी एन की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है बच्चे? सर इस वाले को हम डिफरेंस मेथड से भी तो कर सकते हैं। क्या चीज? डिफरेंस मेथड से। हाँ जी, क्यों नहीं कर सकते हो? देखो डिफरेंस मेथड है या फिर कहते हो डिफरेंस, देखो उसके थ्रू जो है कर तो सब मेथड से सकते हैं, लेकिन डिफरेंस मेथड से भी बड़ा हो जाता है, उससे ज्यादा। देखो ये चूंकि अभी आपका T1 T2 के टर्म में लिखा है ना, इसलिए आपको लग रहा है बड़ा है, लेकिन यही जब ये डिजिट में आएगा तो बहुत इजी लगेगा आपको, डायरेक्ट आप ABC निकाल सकते हैं, समझे? और आपको TN मिल जाता है, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। हाँ, जो डायरेक्ट मेथड है उससे तो किया ही जा सकता है, उससे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन बिना उसके भी आप कर सकते हो, इस तरह से कंसीडर करके। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े हम। यस। हेलो,
चलिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ओके ये क्या लिखा हुआ, रुक जाओ एक मिनट, पूरा काम हुआ है ये तो। सर हाँ सर बाइनोमियल वाले का एक एग्जांपल बता दो। बाइनोमियल वाले का एक एग्जांपल बता दे। बाइनोमियल सब लोग पढ़े हो? आगे नो लोग पढ़े। सर। नहीं सब हाँ? ने नहीं पढ़ा। ये तो मीठ ही नहीं रहा है ये। तो नेक्स्ट स्लाइड पर गए तो सब पढ़े होते तो मैं अभी जस्ट बता देता। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे आप देख रहे हो क्या है। चलो आप लोग थोड़ा सुनना, जो पढ़े हुए हैं वो समझ जाएंगे। जैसे आपसे कहा जाएगा कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज 1 + 3x 1 + 3x + 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी है। ठीक है, तो अगर ये चीज है तो इसको अगर आप जीपी मेथड से निकालोगे तो क्या करोगे, इसको मान लो थोड़ा देर के लिए क्या है, एस इंफिनिटी है। ठीक है, तो अगर इसका सम निकालना चाहते हैं तो एक सीरीज देखो 1 3 6 10 इस तरह से जा रहा है, और एक सीरीज जो है x⁻0 x⁻1 x स्क्वायर x क्यूब इस तरीके से जा रहा है कि नहीं। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जो जीपी सीरीज आपको दिख रहा है इसका जो कॉमन रेशियो है उससे पूरे सीरीज को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या करेंगे, x इंटू एस इंफिनिटी करेंगे। ये वैल्यू क्या दे देगा, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x, तो ये 3x के सामने लिख दो, प्लस 3x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, वो इसके सामने, फिर 6x क्यूब प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। होता क्या है एक्चुअल में कि मान लो एक टर्म कम भी हो गया तो इनफाइनाइट सीरीज है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ आप माइनस कर दो सबको। ठीक है, जब आप माइनस कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 1 - x इंटू एस इंफिनिटी इक्वल्स टू 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब देखो एक क्या हो गया, एक आ रहा है 1 2 3 4 5, तो ये हो गया एपी, और x⁻0 x⁻1 x स्क्वायर x क्यूब ये हो गया जीपी। इसी को आपने कहा ए जीपी सीरीज, इसको आपने Yes. क्या कहा, ए जीपी सीरीज। लेकिन क्या है कि अभी भी ये पूरा नहीं है, Yes. समझ रहे हो कि नहीं। तो हम फिर से Yes. क्या करेंगे, फिर से हम फिर इस से x माइनस से कर देंगे। मल्टीप्लाई नहीं, X फिर से से मल्टीप्लाई करो। x से मल्टीप्लाई करके हम इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, Yes. मेरी बात समझ रहे हो। Yes. चलिए यस x इंटू 1 - x इंटू एस इंफिनिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर से ये x आ जाएगा, फिर से ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर से ये 3x क्यूब आ जाएगा डॉट 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 इंफिनिटी। अब फिर से माइनस कर दो। ठीक है, तो ये क्या है, माइनस अगर आप करते हो तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ये देखो 1 - x कॉमन हो गया, 1 - x इंटू एस इंफिनिटी आप कॉमन ले लिए, तो बचा क्या 1 - x बचेगा, और इधर क्या हो Yes. जाएगा 1 + x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। ओके, तो बताओ ये फाइनली क्या हो गया, 1 - x होल स्क्वायर इंटू एस इंटू टी इक्वल्स टू 1 + x। अब देखो ये ऑलरेडी जीपी में है, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके Yes. बदले आप डायरेक्ट लिख सकते हो। एक मिनट, आज गलत झूठ बहुत हो रहा है।
तो क्या हो गया 1 + x + x² x³ अप टू इन्फिनिटी a बाय 1 माइनस आर, तो मतलब क्या आ गया 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो बताओ s इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, मतलब ये क्या आ गया 1 माइनस एक्स टू द पावर -3। अब बाइनोमियल थ्योरम से जब इसको आप ब्रेक करते हो तो देखो डायरेक्ट पहुंच जाते हो कि नहीं इस सीरीज पर। yes sir, अब कहोगे कि सर ये कैसे, मुझे सपना तो आएगा नहीं, है कि नहीं। yes तो इसको क्या करना है, कंपेयर कर दो, 1 + x टू द पावर n से कंपेयर कर दो। देखो मैं थोड़ा सा, जो बच्चे नहीं पढ़े हो वो प्लीज 2 मिनट के लिए टॉलरेट करना, जो बच्चे पढ़ लिए हो उसको बहुत अच्छा लगेगा, और जो नहीं पढ़े उनको भी मैं बताऊंगा, आप चिंता मत करना। जैसे मान लो हम मान लेते हैं 1 + λx टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन मुझे पता है कि नहीं। क्या होता है 1 + n इंटू λx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू λ² x², इस तरह से होगा कि नहीं, अप टू इंफिनिटी yes sir, यस फॉर सर। इन फॉर एनी इंडेक्स। अब yes देखो, अब इसको आप क्या करो कि इस सीरीज से कंपेयर कर दो, इस सीरीज से इसको कंपेयर कर दो। तो कंपेयर कर रहे हो तो देखो 1 के बदले 1 लिखा है कि नहीं, और यहाँ क्या है 3x लिखा है, और यहाँ क्या है n लैम्डा इंटू एक्स लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि n लैम्डा इक्वल टू आपका क्या आ गया 3, आएगा कि नहीं। yes n लैम्डा इक्वल टू आपका 3 आ गया। फिर आप देखिए यहाँ x², मतलब n इंटू n माइनस 1 बाय 2 λ² इक्वल टू आपका क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, ये आपका 6 आ गया। अब आप इस स्थिति में गौर करो, n लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर दो। देखो n इंटू n माइनस 1 बाय 2 इंटू λ² को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो n लैम्डा इंटू n लैम्डा माइनस लैम्डा, एक लैम्डा आप इससे दे दो और एक लैम्डा इसको दे दो, बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो गया इक्वल्स टू 6 हो गया। ठीक है, अब n लैम्डा की वैल्यू क्या है 3, 3 इंटू 3 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू क्या आ गया 6, 3 2 जा 6। बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई -1 मिला, 2 2 जब 4 हो जाएगा, और लेमडा को उधर ले जाओ 4 को इधर ले आओ, 3 माइनस 4 क्या हो yes गया -1। अब लेमडा की वैल्यू अगर यहाँ -1 पुट कर दें तो बताओ n की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी कि -3 नहीं। अब वो आप इसमें पुट कर दो, मतलब क्या हो गया 1 माइनस एक्स टू द पावर क्या हो गया -3। तो बताओ ये इजी है कि ये इतना करना इजी है। तो जो अभी किया। वही तो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि जनरल फॉर्म जो आपका बाइनोमियल का है ये बहुत ही सटीक चीज दी गई है, इसको आप लोग नोट कर लो। आगे बढ़े। सर एक
डन सर। ओके डन सर। ओके। चलिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, जो बच्चे बाइनोमियल जानते हो बाइनोमियल से करना, जो बच्चे अभी जो पढ़ाया गया है वो जानते हो तो उसके हिसाब से करना, ठीक है? लेकिन करना जरूर, गलत होगा कोई बात नहीं है, लेकिन ट्राई जरूर करना है, ठीक है बच्चे? वी शुड ट्राई एट लीस्ट वंस। फाइंड द सम ऑफ find the sum of infinity of the series, sum of infinite series s infinity equals to 1 plus 2 by 3 plus 6 by 3 square plus 10 by 3 cube plus 14 by 3 to the power 4 plus dot dot dot. Please try it. डन सर। ओके, किस मेथड से किया? सर बाइनोमियल वाले से। चलो गुड, अभी बोलना मत। सर ये 1+2/31 है, हम्म, 2/3 नहीं है। नहीं, एक इंटीजर है, बस इतना याद रखो। बच्चे बाइनोमियल से आप लोग भी तो कर सकते थे, कम से कम फॉर्मूला तो मैं लिख ही दिया था। लिखा था कि नहीं? फैक्टोरियल नहीं तो सुने हो? सर डन। बताइए क्या वैल्यू आया? सर 3 आया है। गुड, सही है। और सबका क्या आया है? मैं उसका सही नहीं बोल रहा हूँ, आप 3। लोग भी बोल सकते हो।
सबका 3 ही आना चाहिए। ये फॉर्मूला को पुट तो आप कर ही सकते थे, इतना भी तो हार्ड नहीं था ये क्वेश्चन, है कि नहीं? सिर्फ पुट करना है। एन लेमडा इक्वल्स टू क्या हो गया, सॉरी एन लेमडा, देखो यहाँ पर 3 टर्म है, एन लेमडा एक्स है, इसका थर्ड टर्म ले लो, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाय 6 इंटू लेमडा क्यूब एक्स क्यूब। अब इसको कंपेयर करके आप निकाल सकते हो, या चलिए अभी तो हम लोग जीपी पढ़ रहे हैं तो जीपी मेथड से आपको बता दें, मतलब ये भी एक तरीका है, इसके तहत आप जा सकते हो और ये आपको तुरंत पहुंचा देगा। दूसरा तरीका है, तो मैं आपको बताया कि इस तरह का जब भी सीरीज दे, इसी को कहते हैं एजीपी सीरीज, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इसमें क्या कीजिए, जो इसका कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब, इससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। उससे भी आसान है, इस -1 को पहले इस तरफ ले आइए और जल्दी हो जाएगा, ठीक है? यस मतलब इसको अगर s कर दें तो s-1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब प्लस 14/3 टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, है कि नहीं? अब क्या है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/3 इंटू s-1, ये क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा, 2/3 स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं? प्लस ये क्या हो जाएगा, 6/3 क्यूब हो जाएगा प्लस 10/3 टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अब फिर से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो s-1 इधर LHS में कॉमन हो जाएगा, रिमेनिंग इज 1 minus 1/2, 1 minus 1/2 equals to what? Right side also sign will be changed, so it is 2/3, 6 minus 2 means 4/3 square plus 4/3 cube plus 4/3 to the power 4 plus dot 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 infinity. Okay, now it becomes easier. After getting 1 in LHS, it becomes easier. Means you can write it 1/2 into s-1 equals to 2/3, 4/3 square, 4/3 cube means 2/3 is remaining same, and 4 is taken as common. We will get 1/3 square, 1/3 cube plus 1/3 to the power 4 plus dot 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 infinity. Okay, so it becomes now 2/3 plus 4 into 1/3 square. It's a, means 1/9 by, and r is what, 1/3 cube by 1/3 square, 1/3, so 1 minus 1/3. Now just solve it, you will get 2/3 plus 4/9, 4/9 into 2/3 means 3/2, 3/2. See, 3 3 ja 9, 2 2 ja 4. Final answer is 2/3 plus 2/3, 4/3. It's what? It's half of s-1. So s-1 is s-1 equals to 8/3. Okay. So s equals to 8/3 plus 1. S half of s-1. गणपतियों आप लोग कुछ बोलते नहीं हो, यहाँ s-1 कॉमन लेंगे 1/3 होता नहीं, यहाँ ये 1/3 होगा तो ये 2/3 होगा ना। सर इसको एक स्टेप में, मतलब एक स्टेप में कर देते वैसे तो।
वो मुझे पता है एक स्टेप, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिनको नहीं पता है, जो ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो मुझे डिटेल जाना होगा ना। वो तो मुझे पता ही है, आप जो बोलना चाह रहे हो सब मुझे पता है। चलिए आप क्या बोलना चाहते बोल लीजिए। सर कि अगर हम 1 को शिफ्ट ना करते हम्म, लेफ्ट साइड पे, हम्म, और उसके बाद हम वो वाला मेथड यूज करते, डिफरेंस मेथड, तो सर एक बार में हम्म। हो तो जाएगा ही, लेकिन एक स्टेप में कैसे हो जाएगा तब भी। सर मेरा तो एक में आ गया। देखो आपका कैलकुलेशन अपने मन में बहुत सारा कर लेते हो, मैं यहाँ अगर दो चार लाइन भी छोड़ दूं, दो चार बच्चे जरूर पूछेंगे कि सर ये कैसे हुआ। और अभी ऑलरेडी बच्चे मेरे साथ बिल्कुल न्यू हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनको प्रॉब्लम ना हो। ऐसे भी न्यू रहे ना रहे, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखो अब ये चेंज हो जाएगा, 2/3 इधर हुआ है कि नहीं, इधर 2/3 है, तो अब क्या लिखोगे, s-1 इक्वल्स टू 8/3 तो होगा नहीं, ये 4/3, तो फिर से मैं इधर कर देता। कि 2/3 इंटू s-1 इक्वल्स टू आ रहा है 8/3। ये देखो 3 3 चला गया, s-1 इक्वल्स और 2 4 जा हो जाएगा। ये फिर से कहीं गलत हुआ क्या जी। 4/3 इक्वल्स टू 2/3 इंटू s-1। आज पता नहीं गलत बहुत हो रहा है, s-1 इक्वल्स टू, तो s-1 इक्वल्स टू 4 जा 8, s+1 होता तब नहीं 3 होता, लेकिन s+1 तो होगा नहीं। 4 कॉमन ले लिए, ठीक है, e स्क्वायर 4/3। अरे यार ये 4 है ना, क्या बात कर रहे हो, यहाँ देखो ये 4 लिखा हुआ है, ये तो गलत है ही। इसकी वैल्यू देखो 4/3 लिखा है, हम लोग यहाँ 8/3 लिखे थे यार। 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बताओ s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 + 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है बच्चे, तो ऐसे भी जा सकते हो और इसके मेथड से भी जा सकते हो, जैसे मन हो जाओ। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं जीपी में। ये ऊपर करें। सर। हाँ बोलिए। सर बाइनोमियल मेथड वाले से सम का लास्ट पे कैसे निकालेंगे? मतलब सर देखो, इसमें तो n आ जाता है ना। चलो इसका एक चीज मैं कम कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये डिजिट में ही है तो लेमडा लेने की जरूरत नहीं है। एन एक्स कर लो, लेमडा को भी हटा दो, 1 + x⁴n क्या हो जाएगा, 3 3। हालांकि रूल तो यही है, रूल वाइज जाओ तो ऐसे ही होगा, लेकिन चूंकि ये सारे इंटीजर सॉरी कांस्टेंट नंबर्स हैं, इसलिए आप लेमडा नहीं भी लोगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा इजीली। लेमडा हटा दो, तब आपका 2 ही टर्म में सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मुझे चाहिए क्या, यहाँ जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और यहाँ जो होना चाहिए वो होना चाहिए, बस। अब देखो एन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ही लिख देता हूँ मैं। एन एक्स इक्वल्स टू हो गया 2/3, है कि नहीं, और एन एक्स इंटू एन एक्स माइनस एक्स बाय 2 इक्वल्स टू हो गया आपका 6/3 स्क्वायर, है कि नहीं। अब एन एक्स की वैल्यू 2/3 इसमें पुट कर दो, तो देखो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको। When you get x, you will find n. Any doubt? अगर हम कैंसिल नहीं करते, क्या लेमडा लेके चलते तो, अगर सर लेमडा, हम लेमडा लेके चलते तो तो ये आप एन एक्स की वैल्यू 2 हो जाती। नहीं, तब ये भी लेते, ये भी लेते और ये भी लेते, ये तीनों लेते तब ना 3 वेरिएबल्स की वैल्यू आप निकाल पाते हैं। नहीं समझे, तब आपका होता है एन नहीं लेमडा सर। इंटू एक्स इक्वल्स टू 2/3, ठीक है।
फिर n इंटू एन माइनस 1/2 इंटू लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6/3 स्क्वायर, और फिर होता है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2/6 इंटू लेमडा क्यूब एक्स क्यूब। अब यहाँ से लेमडा आप सबको बांटते हैं, एन लेमडा माइनस लेमडा, एन लेमडा माइनस 2 लेमडा, ठीक है, इंटू एक्स क्यूब बाई 6। यहाँ पर जो रिलेशन आपको मिलता है वो लेमडा और एक्स के टर्म में मिलता है कि नहीं, वो आप Yes, इससे sir. लेते हैं, तब जाके आपको एक लेमडा की वैल्यू मिलता है, जो कि रूल है, रूल के तहत अगर जाओ तो ये है। लेकिन चूंकि यहाँ देख रहे हैं हम लोग ये मतलब कांस्टेंट नंबर के टर्म में है, तो x तो जो भी आ जाए, x नेगेटिव आए या कोई नंबर आए, यही हो सकता है ना, हम डायरेक्ट nx से करते हैं तुरंत पहुंच जाते हैं। अगर कोई वेरिएबल होता तो हाँ, हम लेमडा तब लेमडा हटा नहीं लेना ही सकते थे। पड़ता था, तब तो जरूरत हो जाती, क्योंकि उस वेरिएबल का साइन स्कीम क्या है, या मान लो 1+2x भी हो सकता है, 1 माइनस √3x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यस चलो गुड, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, सर हाँ बोलिए। सर फिर ये n और x की वैल्यू 1+x n में डाल देते हाँ हैं, फिर समझ आता। बस यहाँ पर x की वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पर n की वैल्यू डाल दीजिए, हो गया। ओके सर। तो अब तक कर भी लिए होते, इतना पूछने की क्या बात है कि नहीं। चलो, आप लोग हर एक क्वेश्चन को घर पर रिपीट जरूर करना बच्चे। ओके, देखो आगे आपको बताया गया, ये तो था प्रॉपर्टीज बेस्ड हम लोग चल रहे थे, तो वहां से हम लोगों ने इस चीज को देखा। इसके बाद आपको बताया गया ज्योमेट्रिक मीन, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी के बाद आपको बताया गया ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जो है ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, इसको आप शॉर्ट में जीएम कहते हो। मान लो इफ द जीएम ऑफ, ये कैपिटल है जी बच्चे, इफ द जीएम ऑफ टू नंबर्स a and p are g, सोचो, then a g b are in gp, okay, it means if these are in gp then its ratio must be same, so you can write it g by a equals to b by g, okay. Now you can write it g square equals to ab, so g equals to ab to the power half, okay, और रूट ए बी। बच्चे ये जी है आपका। ठीक इसी तरह से जैसे आप 2 नंबर्स का निकालिए, ऐसे ही आप जीएम ऑफ 3 नंबर्स भी निकाल सकते हैं। जीएम ऑफ 3 नंबर्स ए बी एंड सी इक्वल्स टू a into b into c to the power 1/3, because numbers are 3, okay. Similarly, GM of n numbers, a1, a2, a3 dot an equals to a1, a2, a3 dot an whole to the power 1/n, okay. So this one is said to be GM, okay. तो ज्योमेट्रिक मीन के बारे में ये बताया गया। इसके बाद इसमें बताया गया है रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है बच्चे, रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। मान लो 2 नंबर्स ही लेते हैं हम लोग,
ए बी लेते हैं तो उसका अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो क्या आएगा? रूट ए बी। रूट ए बी आएगा। और अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी ए बाई बी। यस। ए प्लस बी बाई 2 आएगा, है कि नहीं? चलो इस पेज को ऊपर करता हूँ मैं। रिलेशन बिटवीन AM and GM, AM and GM, ठीक है बच्चे? इसमें रिलेशन जो बताया गया वो यही बताया गया कि एनी ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, सपोज A1, A2, A3, AN dot 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 AN are n terms, their AM is always greater than or equals to their GM. You can understand it by taking two numbers A and B, means AM को if you denote it by A, then A equals to A plus B by 2. Let two numbers are A and B. Two numbers are A and B. Okay. So A equals to A plus B by 2 and G equals to root AB. If this one is true, it means what? A plus B by 2 is greater than equals to root AB. Now you can write it. A plus B is greater than 2 root AB. Okay. Now you can write it. A is written as root A square plus B is written as root B square minus 2 into root A into root B. You can write it is greater than equals to 0. It means what? Root A minus root B whole square. And we know the square of any number is always positive. It means the rule of inequality is true here. Hence, we can say AM is greater than equals to GM. Now, when AM is equals to GM, isn't it? When numbers are same, like 2, 2, 2, 2, 2, its AM is same as its GM. Yes. No. When numbers are same, then AM equals to GM. When all the terms are same, terms are same, then AM equals to GM. ओके, अब देखिए इनइक्वालिटी का सबसे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो ये रूल है। अगर आप इनइक्वालिटी पढ़ते हो और ये रूल नहीं जानते हो तो मतलब इनइक्वालिटी आपको नहीं आती, समझ रहे हो बच्चे? और ये आपको बहुत काम आएगा एज ए शॉर्टकट। देखिए हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं, इसको आगे बढ़ाएं। Yes. हेलो, Yes, sir. चलिए इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं, थोड़ा इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि मुझे मजा आए थोड़ा, है कि नहीं? Yes. पढ़ ही रहे हैं, जो पढ़ चुके हो उनको भी मुझे पढ़ाना है और जो नहीं पढ़े हो उनको भी मुझे पढ़ाना है। कुछ नया नया चीज आपको देते रहेंगे तभी तो आपको मन लगेगा, नहीं तो ऑफ हो जाओगे लाइन से, है कि नहीं? अब जैसे आपसे Yes. कहा जाएगा, अब देखो इनइक्वालिटी में एक चीज आप समझ लो, इनइक्वालिटी में एक चीज समझना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का जो मतलब होता है, लॉजिकल मीनिंग ऑफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इट इज लेस देन, मतलब लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, और यू कैन से मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। और लेस देन इक्वल्स टू का मीनिंग होता है मोस्ट, एट मोस्ट, और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? जैसे मान लो एक एग्जांपल, आपसे कहा जाता है कि आप मार्केट जाइए और ये सामान लेके आइए, आप कहते हो अपने पापा से या मम्मी से कि कम से कम इसका दाम होगा 100 रुपया। मतलब क्या है,
आप कम से कम 100 रुपये चाहिए, एटलीस्ट यू हैव रिक्वायर्ड 100 रुपीज। अधिक से अधिक जितना आप देना है, मम्मी की इच्छा है, वो 100 से नीचे तो दे नहीं सकती है। तो उस स्थिति में आप क्या देख रहे हो, कम से कम का यूज हो रहा है, तो मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, Yes. है कि नहीं। ठीक वही चीज आप यहाँ देख लो, तो किसी का देखते हो जूता है, ये जूता पहना हुआ है, नया जूता है, आप उससे पूछते हो, अपने मन में इमेजिन करते हो इस जूते का दाम अधिक से अधिक ये होगा, 5,000 होगा इस जूते का दाम, अधिक से अधिक। तो इसका मतलब क्या है, आप तो जानते नहीं हो, आपने 5,000 बोल दिया, क्या लेस देन इक्वल्स टू 5,000, इट मीन्स द प्राइस ऑफ दैट शू मे बी 500 or 100 or 200 or 2,500, but not more than 500, ओके। Yes, sir. तो ये है, तो इनइक्वालिटी में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपसे कहा जाता है निकालने को। जैसे आपसे कहा जाएगा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ नाइन टू द पावर एक्स प्लस 9 टू द पावर 1 माइनस एक्स। अब आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये है क्या, 9 टू द पावर एक्स प्लस 9 टू द पावर 1 माइनस एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने को कहा जा रहा है। इसको आप क्या लिख सकते हो, ये देखो, अगर इस दो नंबर का, मान लो ये दो अलग अलग नंबर है, आप लोग पहले देख लो, आप लोग, मैं जानता हूँ बहुत लोग जानते भी होंगे, ये नंबर का अगर सम देखते हो तो इन दो नंबर का आप क्या करो, एम निकाल लो, एम ऑफ 9 to the power x plus 9 to the power 1 minus x is what, is 9 to the power x plus, सॉरी यहाँ कॉमा होगा जी, इसको आप कॉमा लिख लो, 9 to the power x plus 9 to the power 1 minus x by 2 which is greater than gm, नहीं, gm क्या हो जाएगा, gm equals to square root of 9 to the power x into 9 to the power 1 minus x, वही चीज यहाँ आप लिखोगे, 9 to the power x into 9 to the power 1 minus, ठीक है बच्चे। तो बताओ 9 to the power x plus 9 to the power 1 minus x is greater than or equals to 2 into, it can be written as 9 to the power x into 9 by 9 to the power x, okay, so it is cancelled out, greater than equals to 2 into 3 that is equals to 6, ओके। मीन्स मिनिमम मीन्स क्या, देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए तो मिनिमम ले रहे हो आप, Yes, sir. समझ रहे हो। इस तरीके से आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करना, सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, पी क्यू आर, क्वेश्चन है पी क्यू आर डिस्टिंक्ट real numbers, then find the minimum value of numbers, then find the minimum value of p plus q
into q plus r into r plus p. Just try it. हम्म, आ गया? रुकिए रुकिए आप। होगा बच्चे? Can it be solved? Yes, sir. बताइए क्या आया आपका? Sir, 8 PQR. गुड, सही है। बच्चों आप लोग देखना, मैं भी कर रहा हूँ सब। देखो, आपको पूछा गया मिनिमम वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस आर इंटू आर प्लस पी is greater than what? Sir, Because numbers are distinct, so it is only greater than. हाँ बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर 8 मॉड PQR नहीं आना चाहिए? क्यों मॉड क्यों लेना जरूरी है? सर क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर PQR स्क्वायर का वो बनना था ना, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो अच्छा मॉड एक्स अच्छा, होता है। चलिए कोई बात नहीं। तो ऑप्शन में जो दिया जाएगा उसके हिसाब से आप सोचना। ठीक है, तो अब देखिए पी क्यू का आप सबसे पहले निकाल लीजिए ए एम। तो आप जानते हो p प्लस क्यू बाई टू क्या हो जाएगा? इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर हटा ही दो, चूंकि डिस्टिंक्ट है तो ये हमेशा ग्रेटर ही रहेगा पी क्यू। सिमिलरली q प्लस आर बाई टू इज ग्रेटर देन क्यू आर। r plus p by 2 is greater than rp. So after multiplying it, you will get p plus q is greater than 2 root pq. Q plus r is greater than 2 root qr. And r plus p is greater than 2 root rp. Okay. So in place of p plus q, you can put 2 root p plus q. Okay. You can put 2 root p plus q, sorry, 2 root pq into 2 root qr into 2 root rp. Now after simplification, 2 into 2, it's 8, and under root pq into qr into rp. Okay, so it becomes 8 root over p square q square r square means what? 8 pqr means
दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चे? यस यस सर। ओके Yes. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरूर करना है आप सबको। ये तो चलो थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था, अब मैं और भी इजी दे रहा हूँ, इस बार सबका होना चाहिए। क्वेश्चन इज इफ ए बी सी आर थ्री पॉजिटिव रियल नंबर्स, if A, B, C are three positive real numbers, okay, and find the minimum value of, then find the minimum value of B plus C by A plus C plus A by B plus A plus B by C. Solve it. So 6. यस सर 6 आ रहा है। चलो गुड, सही है। यस सर। चलिए, ये बताने की जरूरत है बॉयज, Yes, एनी सही ऑफ बता यू दो। हैव एनी? ओके ओके ठीक, देख अब सबसे पहले क्या करो, इसको आप अलग अलग कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, b बाई ए प्लस सी बाई ए प्लस सी बाई बी प्लस ए बाई बी प्लस ए बाई सी प्लस बी बाई सी। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हो b बाई ए प्लस ए बाई बी को एक साथ कर लो, फिर c बाई बी प्लस बी बाई सी को एक साथ कर लो। देखो यहाँ c बाई बी है और यहाँ b बाई सी है, तो इसको एक साथ कर लो, c बाई बी प्लस बी बाई सी। अगेन आप क्या करो, a बाई सी और c बाई ए को एक साथ कर लो, a बाई सी प्लस c बाई बी को एक साथ कर लो, है कि नहीं? अब क्या होगा, इसका जो सम होगा ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट बी बाई ए इंटू ए बाई बी, है कि नहीं? इसी तरह से ये हो जाएगा टू रूट सी बाई बी इंटू बी बाई सी प्लस टू रूट ए बाई सी इंटू सी बाई ए, सी बाई ए। अब देखो ये सारे आपका अंदर में क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, वन बचेगा, क्या हो गया, टू प्लस टू प्लस टू। बच्चे समझ में बात आई? यस सर। Yes. चलिए, अब देखिए दो अलग अलग प्रोडक्ट का मल्टीपल फॉर्म में अगर आपको दिया जाए तब आप कैसे करते हो? नेक्स्ट पेज चले। यस यस सर। चलो, क्वेश्चन है आपका
ठीक है, मान लो ABC जो है 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ABC are 3 positive real numbers. Okay. Then find the least value of. Then find the least value of A plus B plus C into 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. इतना समय लगा दोगे? सर 9 आ रहा है। 9 आएगा, गुड, सही है। अरे इसका निकाल दो, A प्लस B प्लस C का आप निकाल दो, करना पड़ेगा। हो गया सर। देखो A प्लस B प्लस C की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ ABC इंटू 3, है कि नहीं, क्योंकि A प्लस B प्लस C बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, 3 क्यूब रूट ऑफ ABC। और इसी तरह से इसका जब निकालोगे ये क्या आएगा, इंटू 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1 बाय A इंटू B इंटू C, है कि नहीं। ये और ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3 इंटू 3। ठीक है बच्चे, चलिए ये तो था इजी वाला। अब मजेदार क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बेस आपका ठीक है। देखिए, if 3x plus 4y equals to 5, if 3x plus 4y equals to 5, then find the greatest value of, then find the greatest value of x square y cube.
होगा बच्चों? होगा, हम्म, होने वाला है सर। चलिए कीजिए। देखो बच्चे, कोई बात नहीं, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था। सर 3/16। गुड, सही है, सर 3/16। गुड। देख लो, बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ होगा। जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 है, आप देख लो निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, मीन्स 2x चाहिए और 3y चाहिए। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी तो ये 2x देगा। आप इसको क्या करो, 2 × 3x/2 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। और इसी तरह से 4y दिया है, तो यहाँ 3y चाहिए, तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, 3 × 4y/3 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या है, 5। अब इसको अगर थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो तो क्या आ जाएगा, 3x/2 प्लस 3x/2 प्लस 4y/3 प्लस 4y/3 प्लस 4y/3। ठीक है, अब ये कितने टर्म हो गए, 5 टर्म हो गए, बाय 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 3x/2 होल स्क्वायर आएगा, 3x/2 होल स्क्वायर इंटू 4y/3 होल क्यूब, 4y/3 होल क्यूब। क्योंकि आप ये 5 नंबर का am निकाल रहे हो, am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो बताओ ये फाइनली क्या हो गया, ये ऊपर के टर्म को फिर से आप लिख सकते हो क्या चीज, इसको लिख सकते हो 3x प्लस 4y बाय 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ, देखो ये क्या हो जाएगा, 9/4 इंटू 64 बाय 4 4 जा 16, 2 4 जा 64, 64 बाय 27, बचा क्या, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है बच्चे, अब देखो इसके बदले आप 5 आपको दिया ही हुआ है, तो आप यहाँ 5 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1। ये हो गया 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ, देखो यहाँ कैंसिल आउट करते हैं, 4 16 जा और 9 3 जा, क्या हो गया, 16/3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है बच्चे, अब दोनों तरफ फिफ्थ रूट कर दो, फिफ्थ पावर लगा दो दोनों तरफ, 1⁵ तो 1 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 16/3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, हेंस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज लेस देन इक्वल टू 3/16, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू गई। ठीक है बच्चे, यहाँ आप लोग ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे, क्योंकि नहीं सही है, ग्रेटेस्ट वैल्यू कह रहा है, ये इधर है, सही है, तो 3/16 इसका मिनिमम वैल्यू। देखो इसका आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आएगा इस तरह का, तो आप ऐसे सॉल्व, यहाँ देखो 2 नंबर नहीं हो सकता है, n नंबर आपको दे दे, x y z w जो मन है वो डाल देगा, तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए शॉर्टकट में दे देता हूँ, और घर पर आप प्रैक्टिस करना अपना। पहला है, फर्स्ट, if x1 x2 xn, if x1 x2 xn are positive real numbers, okay, या वेरिएबल्स जो कह लो, such that x1 plus x2
x1 plus x2 plus x3 plus dot 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 xn इक्वल्स टू सी। मान लो इसका जो सम है वो सी दिया हुआ है कांस्टेंट, ठीक है। देन इट्स प्रोडक्ट, देन इट्स प्रोडक्ट मतलब x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। देन इट्स प्रोडक्ट बिकम्स ग्रेटेस्ट, becomes greatest, ठीक है। मीन्स क्या, if then its product becomes greatest if x1 equals to x2 equals to x3 equals to dot 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 xn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये n पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो c बाय n हो जाएगा, ठीक है बच्चे। एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू इज, एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू इज वैल्यू इक्वल्स टू c by n to the power n, c by n to the power n। जैसा भी इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि जो दो नंबर मिला, एक नंबर मिला आपको 3x/2 और दूसरा नंबर मिला आपको 4y/3, यही मिला ना। ये दोनों नंबर x1 इक्वल्स टू x2 हो गया इक्वल्स टू c बाय n। c कितना था, सम जो था वो 5 दिया हुआ था, और n कितना था, n भी तो 5 ही हुआ था, है कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि 3x/2 इक्वल्स टू 4y/3 इक्वल्स टू 5/5, दिस इज इक्वल्स टू 1। हेंस x इक्वल्स टू आ गया 2/3, y इक्वल्स टू आ जाएगा 3/4, ठीक है। x इक्वल्स टू 2/3, y इक्वल्स टू 3/4, तो आप आसानी से निकाल सकते हो x और y की वैल्यू जो मिल गई, तो p प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इक्वल्स टू 2/3 होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का वैल्यू चाहिए, इंटू 3/4 होल क्यूब। इसको सॉल्व कर लो, देखो आ जाएगा। बच्चे समझ में बात आई? हेलो, यस सर। Yes, sir. यस चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके प्रोडक्ट का मिनिमम फॉर्म बता दूंगा। तो ए एम इज ग्रेटर देन जी एम, आप इनइक्वालिटी अगर पढ़े होगे तो उसमें भी इस चीज़ को आपने देखा होगा, और बस नहीं देखे हो तो अभी देख लो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये हम लोग ए एम जी एम में ही पढ़ा देते हैं डिटेल्स, ठीक है बच्चे। तो कल के क्लास में हम लोग फिर आगे की कहानी करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Evening all of you.